construction are of very low quality, so on and so forth, by educated engineers and doctors. By being a degree holder does not mean that you are educated. You may have a degree, but in terms of being a human being, and that's why if we say that knowledge and education is not only for employment, knowledge education is not for only for livelihood. Knowledge, when holistic knowledge starts from your family, and what should your behavior to be a big, good human being, not only concerned about the suffering of only neighbor, rather any suffering anywhere in the world. That's why big things were said from the beginning in our culture, in our scripts. But what has happened that by the time we have been little bit polluted. That will change through these type of discussions. And I feel that when anything goes down below, there is a limit. And perhaps time has come with these thinkings, with these ideas, with these congregations, people will start changing. And from Kali Yuga, what will come next? If there are 3-4 yugas, you say that Treta, Dwapar, Kali Yuga, then what will come? Satyuga will come. So let us be hopeful. Don't be demoralized, don't be concerned that change will not come. You are the one, be the change maker. Become the ambassador, be the change maker, and you all who are sitting here can change the whole world. And perhaps I will tell whatever was said was initiated by Professor Trivedi 40-50 years before. He is up 70, he has seen 70 springs, but perhaps 50 years before, his one slogan was, clean up earth. Clean up earth means his concern was about the climate change, about the pollution and so on and so forth. And last but not least, one of the slogan was about the youth, because he was very much concerned about youth, and that's why he started a number of institutions. When the people were not thinking about those disciplines, that time he thought about those institutions, and he said, catch them young. Sometimes he repeats when we are in a very informal discussion with him, and catch them young was a slogan maybe 50 years before, when he realized that India is a young, independent country. India is getting a big population where more than half of the humanity in India will be younger, and perhaps we should train them when they are young. And they are the one, they will change the world. His institution has created a number of institutions. And you can see that I salute him, and we have to learn from his life how he works, how he creates. I have no words to explain about his personality. I know him only for last 3 years. I met him in 2017. But from that time, every time when I meet with him, I learn something from him. I really love to read his writings, research, and new ideas he brings too. In education also, I think the book which is on his, that book will be a great knowledge book for research, not only in education, rather in many disciplines in India, and many ministry can benefit, and the whole India can benefit out of some of the recommendations which he had made in different disciplines, from education to climate change, to industries, and how to address number of problems which India is facing today. So I will not take much time because there are many speakers, but I just remember when last Man Ki Baat, when Prime Minister Modi was talking, he mentioned about a Tamil poet.
whatever we know is just like a mist of sand. Lot of vast knowledge is available in the universe. We should see that how we can catch to make and change the world and India for a better world. And Professor Trivedi is a great saint, great philosopher, great theologist, great thinker. It is our honor and pleasure to have his time and his company sometime to learn a lot. With these few words on your behalf, I wish him long, fruitful, meaningful and creative life to bring India at the top and world for a better world to live in. Thank you. Thank you. Honorable Dr. Markandeya Rai Sahab, for your good words, and you also reminded me the jargon and the slogan I had advocated 45 years ago when nobody used to understand the meaning of Catch Them Young. So I had to lecture even in this auditorium many times under the aegis of the India International Center as to what is meant by Catch Them Young. And I used to tell them the same thing which I am going to tell you now. The idea of catching them young is to catch the children young. The school children who are present here, we want to catch them young. We want to catch them young so that they may become didactics, educators, to further educate their guardians, their fathers, their mothers, their own teachers, their colleagues, rather the entire neighborhood. So that is the idea of Catch Them Young. And now that we have spent 45 years, Catch Them Young slogan has really gathered momentum. So I'm glad that people are adopting and adapting this jargon, and they are introducing environmental education, disaster education, human rights education, also cleanliness education in their schools. In this connection, I would also like to announce that all of you, through your respective organizations, will be getting tomorrow or on Monday through email the entire book of 600 pages in the PDF format, which is titled With Our Values, With Our Morality, With Our Character, With Our Ideology, Strategies for Introducing Value-Based Education in schools, colleges and universities. So, we would like to email to you. In the meantime, if you want this book on your personal ID, because from one school or one college there are 5 or 6 representatives, besides the parents. So they can always give the email ID to us at the main counter, name and their email ID. We will be pleased to email the entire book to them. Not only that book, but also the book on unemployment. These can be sent to you. Friends, the next speaker is Honorable Dr. S.N. Pandey. He is the Pro-Chancellor of the Global Open University Nagaland. He has been a health scientist and he was at the Head of Affairs in the Ministry of Ayush, where they deal with yoga, naturopathy, siddha and homeopathy. So we request Dr. Pandey to present his view briefly. मित्रों, आज आदरणीय प्रोफेसर त्रिवेदी जी का 70वां जन्म दिवस है। त्रिवेदी जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। वो मेरे मेंटर भी रहे हैं, गाइड भी रहे हैं, गुरु हैं। मैं कभी आज का दिन मिस नहीं करता। मैं कलकत्ते में था, आज विशेष रूप से आया कि आज मुझे पहुंचना ही है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय त्रिवेदी जी को फूल माला पहना करके अपना सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा।
लोग यहाँ वैल्यू एजुकेशन के बारे में अभी बातें कर रहे हैं। आपके अंदर किस तरह के वैल्यूज हैं, इसका पता तभी चलता है जब आप किसी क्राइसिस में, विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, तो पता चलता है कि आपके अंदर क्या है। अभी इसी दिल्ली में यहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूरी, इतने लोगों की हत्याएं हुई, इतनी आगजनी हुई, और जो कहानियाँ सुनने में आती हैं उनको सुन करके लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है हम लोगों के वैल्यू सिस्टम में। 50 से ऊपर शायद 55 लोग मर चुके हैं, 300-400 लोग घायल हैं, दुकानें जला दी गई हैं। ये कौन आदमी कर सकता है? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरा सब कुछ भी दांव पर लगा हो तो भी मैं इस तरह का घिनौना कार्य कर नहीं सकता। जिन लोगों ने किया है उन्होंने अपने जीवन में क्या अर्जित किया है, ये सोचने वाली बात है। आज आप पूरे विश्व का सिनेरियो भी देखें तो कुछ न कुछ गड़बड़ लगता है। इतनी लड़ाइयाँ, इतने मार काट, और आदमी को मारने के लिए जितनी चीज़ें बनाई जा रही हैं उतना आदमी को जिंदा रखने के लिए नहीं बनाई जा रही। किसी भी सरकार का बजट आप उठा के देखिए, आदमी को मारने वाले चीज़ों के संग्रह में जो धन खर्च किया जाता है वो लोगों को सुखी बनाने के लिए, सुरक्षित रखने और स्वस्थ रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उतना धन व्यय नहीं किया जाता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बोहरा साहब कई बातें कह रहे थे। ये पढ़े लिखे लोग किस तरह से भ्रष्टाचार कर लेते हैं, किस तरह से हमारी बिल्डिंगें नकली सीमेंट लगा के बना दी जाती हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें। मेरे देखने में ये आता है कि हम लोगों का जो विकास किया जा रहा है, एकांगी विकास किया जा रहा है। हमारे शिक्षा में कुछ ऐसी बातें अंतर्निहित होनी चाहिए बचपन से कि हमारा शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो और आध्यात्मिक विकास भी हो। अगर ये चारों विकास एक साथ नहीं किए जाएं तो आपका व्यक्तित्व संतुलित नहीं रहेगा। और कुछ मूल्यों को अनिवार्य रूप से आपके अंदर समाहित करना ही चाहिए। कुछ चीज़ें सदा से गलत ही मानी जाएंगी। आप किसी को कष्ट पहुंचाते हो, दुख पहुंचाते हो, ये कल भी गलत था, आज भी गलत है और आगे भी गलत ही रहेगा। किसी का हत्या करना, किसी को कष्ट देना, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर एक हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहाँ साइकियाट्री विंग में मेरा कमरा था। आदरणीय त्रिवेदी जी कई बार वहाँ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के इनॉग्रेशन के लिए गए। वहाँ जिन दिनों मैं था तो कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखता था। कई लोग आते थे जो बड़े क्रिमिनल टेंडेंसी के होते थे, मार काट तोड़ फोड़। तो समझ में नहीं आता था कि इनको क्या किया जाए कि ये इनके अंदर से ये प्रवृत्तियाँ नष्ट हों। केवल दवा खिलाने से तो प्रवृत्तियाँ नष्ट होती नहीं। तो एक बार मुझे एक छोटा सा उपाय सूझा। मैंने कुछ 10-15 ऐसे ही बड़े खूंखार टाइप के मरीजों को इकट्ठा किया और बैठाया
हमने कहा भाई एक छोटा सा काम करना है, करोगे? कहें क्या? हमने कहा बैठ करके आँख बंद करके और बोलो कि सबका कल्याण हो। बोल लोगे? कहें हाँ जी बोल लूँगा, इसमें क्या है। बैठा दिया, उसके बाद कहा कि बोलो, तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं बीता होगा, एक खड़ा हो गया, कहने लगा साहब ये तो बड़ा गड़बड़ है। हमने कहा क्या गड़बड़ है भाई? वो कहने लगा कि ये हमारे कुछ 2-4 ऐसे बदमाश हैं, इनको तो मैं ज़िंदगी में माफ़ कर ही नहीं सकता। अब मैं जैसे ही बैठ करके सबका कल्याण हो बोलता हूँ तो वो मेरे दिमाग पर नाचने लगता है। हमने कहा भाई उनमें से जो छोटा बदमाश हो उसको माफ़ करो, बाकियों को ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो कि इन 3-4 को छोड़ के बाकियों का कल्याण हो। आपको ताज्जुब होगा, थोड़े देर में, समय कम है, बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं। सभी जितने भी कर रहे थे सब खड़े हो गए। सभी के कोई ना कोई ऐसे दुश्मन है, कहते हैं साहब रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खानी पड़ती है, इतना सर पर सवार हो जाते हैं। भाई हम सभी के साथ है, हम लोगों में हिंसा की भावनाएं इतना ज़्यादा हैं, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं कि नहीं हम नहीं जानते, खुद को तो नुकसान पहुंचाती हैं, खुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये हिंसा करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, असत्य बोलना बुरी बात है, ये हम सभी जानते हैं। भाई मैं यहाँ आने से पहले एक टीवी चैनल है, इंडिया टीवी का, उस पर देख रहा था कुछ रिलीजियस लीडर्स जो बड़े भड़काऊ टाइप के भाषण दे रहे थे, उनका टेप दिखाया, बाद में उसके बाद वो इंटरव्यू करने पहुंचा। तो वही लोग जो ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं दिखाई पड़ रहा है, सुन रहे हैं हम लोग, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई मैंने ऐसा कह दिया, उसको रेशनलाइज कर रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ये था और ये तो ये हो गया वो हो गया। इतना ज़्यादा असत्य हम लोगों में भर गया है कि क्या हमारा कल्याण होगा? ना हमारा कल्याण होगा, ना मेरे साथ रहने वाले किसी का कल्याण हो सकता है। तो ये सब वैल्यूज़, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, तमाम तरह की चोरियाँ हैं, टैक्स की चोरी, इसकी चोरी, उसकी चोरी। एक बार मैंने लिस्ट बनाया 400 प्रकार की चोरियाँ, उससे आगे बनाना छोड़ दिया। तो चोरी करना बुरी बात है, हमारे अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज होने चाहिए कि हम किसी का नुकसान न पहुंचाएं, सत्य का साथ दें, असत्य आचरण न करें, चोरी से बचें, किसी को बुरी निगाह से न देखें। कई लोगों को मैं देखता हूँ इकट्ठा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हो? अशांति भरे हुए। दुर्भाग्य से कहिए, सौभाग्य से कहिए, मेरा काम चिकित्सा का है, तो मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको मैं देख करके दुखी होता हूँ कि इनको किसी दूसरे ने दुख नहीं दे रखा, बीमारी ने कहीं से बाहर से आकर के नहीं पकड़ लिया है, ये बीमारी खुद ये है। और वो किस लिए? कि इनके जीवन में सही तरह के मूल्य अपनाए नहीं गए हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं और अपने बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप स्वयं भी और बच्चों का भी और जो भी आपके साथ एसोसिएटेड हो, उसको केवल शारीरिक और मानसिक ही उत्थान का मार्ग न प्रशस्त करिए, उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर एक साथ विकास हो, इसका उचित प्रबंध करिए। कैसे करेंगे इस पर फिर कभी बात होगी, कई हमारे मित्र भी बोलने के लिए बैठे हुए हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी, बुरी निगाह से किसी को देखना, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना, ये सब बंद करिए और जीवन में कुछ शारीरिक और मानसिक पवित्रता लाइए, संतोष लाइए, संतुष्ट रहना सीखिए। जो चीज़ पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए सत प्रयास करिए, गलत प्रयास से पाने का कभी प्रयास न करिए।
आप जो भी बनना चाहते हैं, बनने का हक है आपको, और उसके लिए आपको सख्त प्रयास करने की ज़रूरत है। पैसा वाला बनने के लिए चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ढंग से प्रयास से करिए, व्यापार करिए, ढंग से पैसा कमाया जा सकता है। तो सख्त प्रयास इसी को तब कहा जाता है। और अपने को अपडेट भी करते रहिए, दुनिया बदल रही है, बदलती दुनिया के साथ आप कैसे चलें। जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है उस तेज़ी से